Hello students, welcome to my YouTube channel Bilakre Spoken and Competitive English. Students, this is the 29th video of my channel, and in today's video we are going to learn remaining 13 sentences of present perfect WH interrogative. Students, so in part 1 already we have seen first 14 sentences, so now we are going to see remaining 13 sentences of WH interrogative. So first we see it's a helping verb. Once again, the helping verbs are have and has, and the main verb form V3 will be used. Now we arrange this WH pattern. Our sentence will start with WH word plus helping verb have oblique has plus subject plus third form of a verb plus object plus other words question mark. So students, so far as the Hindi identifications and rules are concerned already we have seen, but for your confirmation once again I am telling you the Hindi identifications. So first Hindi identification is चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है and चुकी है. And the second Hindi identification is या हूँ, ये हूँ, ये हैं, ये हो, या है and ई है. And rules for the helping verbs. So has helping verb is used only with third person singular, and with the rest of the persons have helping verb is used. So students, now we see the examples according to number wise. So in part 1 already I have told you we have seen first 14 sentences. So we continue the example number 15. For example, if we say in Hindi, कौन सा चपरासी पौधों को पानी दे चुका है? कौन सा चपरासी पौधों को पानी दे चुका है? Our English sentence will be which peon has watered the plants? Which peon has watered the plants? कौन सा चपरासी पौधों को पानी दे चुका है? Which peon has watered the plants? Now we see the example number 16. If we say in Hindi, किस अस्पताल में वह सेवा कर चुकी है? किस अस्पताल में वह सेवा कर चुकी है और सेवा की है? Our English sentence will be in which hospital has she served? In which hospital has she served? किस अस्पताल में वह सेवा कर चुकी है या सेवा की है? In which hospital has she served? Now we see the example number 17. If we say in Hindi, किसका बोझ सरकार कम कर चुकी है? किसका बोझ सरकार कम कर चुकी है? Our English sentence will be whose burden has the government reduced, or we can say lessened. किसका बोझ सरकार कम कर चुकी है? Whose burden has the government reduced or lessened? Now we see the example number 18. If we say in Hindi, किसके मकान में आतंकवादी षड्यंत्र रच चुके हैं या रचे हैं? किसके मकान में आतंकवादी षड्यंत्र रच चुके हैं या रचे हैं? Our English sentence will be in whose house have the terrorists conspired, or we can say plotted. किसके मकान में आतंकवादी षड्यंत्र रच चुके हैं या रचे हैं? Our English sentence will be in whose house have the terrorists conspired or plotted. Now we see the example number 19.
इफ इट्स इन हिंदी, कितना दूर लंगड़ा व्यक्ति चल चुका है या चला है, कितना दूर लंगड़ा व्यक्ति चल चुका है या चला है. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, हाउ फार हैज द लेम पर्सन वॉक्ड. कितना दूर लंगड़ा व्यक्ति चल चुका है या चला है. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, हाउ फार हैज द लेम पर्सन वॉक्ड. नाउ वी सी द एग्जांपल नंबर 20. इफ इट्स इन हिंदी, कितना देर वह प्रार्थना कर चुकी है या कितना देर वह प्रार्थना की है. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी, हाउ लॉन्ग हैज शी प्रेड. कितना देर वह प्रार्थना कर चुकी है, कितना देर वह प्रार्थना की है. हाउ लॉन्ग हैज शी प्रेड. नाउ वी सी द एग्जांपल नंबर 21. इफ इट्स इन हिंदी, कितना देर वे नाव खे चुके हैं, कितना देर वे नाव खे चुके हैं. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, कितना देर तक वे नाव खे चुके हैं या कितना देर तक वे नाव चला चुके हैं. हाउ लॉन्ग टाइम हैव दे सेल्ड द बोट. कितना देर तक वे नाव खे चुके हैं, कितना देर तक वे नाव चला चुके हैं. हाउ लॉन्ग टाइम हैव दे सेल्ड द बोट. Now we see the example number 22. Suppose we say in हिंदी, कैसे वे अपनी समस्याएं सुलझा चुके हैं या कैसे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं. Our English sentence will be, how have they solved their प्रॉब्लम्स. कैसे वे अपनी समस्याएं सुलझा चुके हैं, कैसे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी, हाउ हैव दे सॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम्स. नाउ वी सी द एग्जांपल नंबर 23. इफ इट्स इन हिंदी, कितना पैसा लुटेरे बैंक से लूट चुके हैं, कितना पैसा या कितना धन लुटेरे बैंक से लूट चुके हैं. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, हाउ मच मनी हैव द robbers robbed from the bank. कितना पैसा या कितना धन लुटेरे बैंक से लूट चुके हैं. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी, हाउ मच मनी हैव द robbers robbed from the bank. So students, there is this problem. So for first four sentences I am rubbing. Okay, now we see the example number 24. If we say in हिंदी, कितने मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कितने मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, हाउ मैनी पेशेंट्स, हाउ मैनी पेशेंट्स हैव recovered or we can say got well from corona. कितने मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं. और इंग्लिश सेंटेंस विल बी, हाउ मेनी पेशेंट्स हैव रिकवर्ड और गॉट वेल फ्रॉम कोरोना. Now we see example number 25.
इफ इन हिंदी, कितने बार सैनिक बमों को निष्क्रिय कर चुके हैं? कितने बार सैनिक बमों को निष्क्रिय कर चुके हैं? और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, हाउ मैनी टाइम्स हैव द सोल्जर्स डिफ्यूज्ड द बॉम्ब्स? कितने बार सैनिक बमों को निष्क्रिय कर चुके हैं? और इंग्लिश सेंटेंस विल बी, हाउ मेनी टाइम्स हैव द सोल्जर्स डिफ्यूज्ड द बॉम्ब्स? नाउ वी सी द एग्जांपल नंबर 26. इफ इन हिंदी, कितने दिनों में वे पुरानी हवेली को ध्वस्त कर चुके हैं? या कितने दिनों में वे पुरानी हवेली का विध्वंस कर चुके हैं? और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, इन हाउ मैनी डेज हैव दे demolished the old castle? कितने दिनों में वे पुरानी हवेली को ध्वस्त कर चुके हैं? या कितने दिनों में वे पुरानी हवेली का विध्वंस कर चुके हैं? और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, इन हाउ मेनी डेज हैव दे डेमोलिश्ड द ओल्ड कैसल? नाउ वी सी द एग्जांपल नंबर 27. इफ इन हिंदी, कितने साल बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है? कितने साल बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है? और इंग्लिश सेंटेंस विल बी हियर, आफ्टर हाउ मैनी years has the Congress party lost the election? कितने साल बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है या कितने साल बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है? और इंग्लिश सेंटेंस इज आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हैज द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन. So students, for today we conclude our class here. Thank you very much for watching and listening me very attentively. See you again. Till then, goodbye to everyone. Take care of you.